Uh, I would just like to thank everybody for coming here, making time and coming here and watching our trailer. This is a film made with a lot of heart, and we need the people to know about this film when they come to watch it on the 10th, so we'll need all the support and love from you guys. Thank you today. सेम टू सेम है भाई. तो मतलब आप सब आए और बड़ी सुंदर फिल्म है भैया. बहुत मज़ा आएगा आप सबको यार. डेढ़ है पर है. तो ये फिल्म उन सब 1.5 शानों के लिए है जिन्होंने इश्क किया है. So I think all of you are going to enjoy the film a lot. Obviously, thank you very much for coming here. Really nice of you all. आप लोगों ने first part देखा था, and here's the second installment of the same thing. It's a beautiful film, very well shot. A lot of hard work has gone into it. Very, very scary, unhygienic, sweaty, dirty locations. Thanks to my director, जो सबसे गंदी जगह देखते हैं वहाँ जाके कैमरा लगा देते हैं. ये भी कुछ कम नहीं, ये भी वैसे ही है, वाहियात इंसान. तो ये लोग ऐसे हैं. So we've suffered all that and we've enjoyed every bit of the dirt and the muck that we went through. And I'm sure you guys will like it. आप लोगों ने promo देखा? Can I ask you, how do you like the promo? Okay, that's the coldest response I've ever got in my life. Wake up and smell the coffee. How do you like the promo? Thank you. Please spend some money and buy some tickets. Thank you. Enjoy the movie. I want to thank everybody who's here right now and members of the unit who are not here. It was a fantastic experience for me, and thank you so much, and thank you all of you for coming today. Hello everyone, thank you for coming here. I hope you guys enjoyed the trailer. We've all worked very hard, and like everybody says, we have really worked hard. We have been to the remotest of locations, and yeah, I never cribbed. And the dirtiest of locations, but I didn't know that they could look so beautiful on screen. So hats off to Setu for doing such a brilliant job. It was wonderful working with Abhishek Chaubey for the first time. I really enjoyed it. The whole cast, Nasir ji, Arshad, Huma, and everyone. I really, really enjoyed working with them. It was like having a picnic, in the dirtiest location on earth. But we made it work, and I think we really enjoyed it. So you will see that in the movie, and I hope you really enjoy it. So thank you again. विशाल नहीं है, इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ विशाल को, और विशाल की तरफ से कुछ बातें कह रही हूँ. स्टोरी आइडिया आया दारा फारूकी को, उसके बाद विशाल और अभिषेक इस फिल्म को लिखने बैठे, और फिर बीच में अटक गए तो मैथ्यू रॉबिन्स ही जॉइंड, एंड उन्होंने इनको उस कीचड़ में से निकाला जिस कीचड़ की सब लोग बात कर रहे हैं. और उसके बाद फिर ये फिल्म की शुरुआत हुई, एंड बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, और म्यूज़िक बहुत बहुत खूबसूरत हुआ है, और अभिषेक इज़ लाइक फैमिली. और इश्किया बहुत अच्छी थी, इसलिए 1.5 इश्किया तो बननी ही थी. और मेरा एक गाना है इसमें ख़ास, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी. बहुत पुरानी ठुमरी बेगम अख्तर साहिबा की हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, उसको इसमें किया है, जिसकी स्थाई वैसी रखी है, लेकिन अंतरे जो हैं गुलजार साहब ने इस फिल्म के हिसाब से लिखे हैं, और उसकी धुन विशाल ने उस हिसाब से नई धुन बनाई है अंतरों की, और पूरा अरेंजमेंट जो है वो उसी इलाका किया है, क्योंकि फिल्म इज़ सेट इन लखनऊ एंड यूपी में, और लैंग्वेज सारी उर्दू है इसलिए. सो आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय दैट. थैंक यू. हेलो. इश्कियाँ से 1.5 इश्कियाँ का सफ़र 4 साल का रहा, लेकिन एक अच्छी कहानी और अच्छी स्टार का वक्त तो लगता ही है. तो होप यू विल लाइक दिस फिल्म, और ये बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है. थैंक यू. Thank you all of you for coming here, and I hope you enjoyed the film as much you have enjoyed the trailer. And I would like to thank the whole team of 1.5 इश्किया. पहले तो बहुत मज़ा आया फिल्म बनाने में, और दूसरा I would specially like to thank all the actors for carrying off all the costumes so beautifully. Thank you. सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? आपका कैरेक्टर क्या है इस मूवी में, कुछ ज़रा डिटेल में बताएंगे? डिटेल के लिए तो अभी तो 1.5 है, पिक्चर देखनी पड़ेगी भाई. हाँ फिल्म देख लो यार, मतलब जो भी है मज़ेदार है, मतलब मज़ा आएगा.
हाँ यही राज है एक्चुअली। तो इसको भी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि है ना। नहीं यार मैं कहाँ से लगता हूँ विलेन, एक्चुअली मैं नहीं हूँ, बट हो जाते हैं ना कई बार, हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा मेरा सवाल विजय राज जी से है कि आपकी कौवा बिरयानी बहुत फेमस हुई थी तो अभी ये दूसरी बिरयानी कब खिलाने वाला है? हाँ जी आपकी कौवा बिरयानी बहुत फेमस हुई थी, हाँ जी। तो अब ये इश्किया में कोई दूसरी बिरयानी या लंच हो गया क्या? नहीं ना। और मेरा एक सवाल है कि आप जवाब देंगे इसका? हाँ बिल्कुल पूछिए। कि आप कुछ और एक नया वर्ड लेकर आने वाले हैं कौवा बिरयानी के बाद? ये सवाल है ये सवाल है तो ऐसा से जवाब है कि देखते हैं, आ गया तो ले आएंगे। और ये 1.5 इश्किया फिल्म का नाम है, तो नेक्स्ट क्या 2.5 इश्किया होगी? 3.5 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 33rd and 1/3 होगी। एक अच्छा सवाल पूछ ले कसम से यार, मैं तो गले लगा लूंगा मैं। एक अच्छा सवाल पूछ ले यार। आप किसी को 1.5 आना मिला? पता नहीं मुझे यार कौन 1.5 आना, मैं 1.5 आना से मिलता ही नहीं यार। सेम आंसर। बाकी पता नहीं, आपसे तो आज मिली हूँ। इश्किया मैंने देखी थी पहले और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो जब उन्होंने कहा कि एक सीक्वल बना रहे हैं जिसमें वी वांट टू कास्ट यू, तो मैं गई थी मिलने के लिए। उन्होंने स्टोरी सुनाई और मुझे अपना कैरेक्टर किरदार बहुत पसंद आया। आई थॉट इट वाज अ वंडरफुल स्क्रिप्ट। देयर इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ रोमांस, देयर इज़ यू नो ट्रस्ट, बिट्रेयल, एवरीथिंग इन द मूवी। और एक बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट मुझे लगी और इट वाज थॉरली एंजॉयबल, सो I said yes to it. वेल मैंने ऑफ कोर्स फर्स्ट इश्किया देखी है, बट उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, वो अलग स्टोरी है। ऑफ कोर्स बोथ द कैरेक्टर्स पेड बाय अरशद नसीर साहब, बब्बन खालू जान, वो एक नई जगह पे आते हैं। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, इन दोनों औरतों से मिलते हैं और उनको इश्क हो जाता है और उसके बाद दिस होल स्टोरी स्टार्ट्स। सो व्हेन ऑफ कोर्स आई स्टिल रिमेंबर अभिषेक हैड कॉल्ड मी, उस दिन 26 जनवरी था और मैं सो रही थी। I picked up the phone and he said, and he started saying, oh, you know, I haven't called in a long time. I had read for the film. And बहुत दिन से phone नहीं आया था, मुझे लगा maybe, you know, he doesn't want to cast me. And after like half an hour, he tells me, oh, so you're doing the film. So I thought, but I thought you were being nice and you had called to say कि तुम film नहीं कर रही हो, maybe we'll work again or something. But yeah, but no, when I read the script, I loved it. I loved the characters. They're far more madder. It's a far more irreverent, बदतमीज किस्म की फिल्म है, मतलब बहुत मज़ेदार है. I think that's the best thing about this one. The first one is very heavy, it's very intense, but this one is more fun, and I think that's why I think everyone's going to enjoy it a little bit more. You know, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. मुझे हमेशा ही from my first film I've always worked with very very good actors, you know, and I've had the privilege, I can say this very humbly, that I've worked with some of the best actors of our times. So with this film also, you know, I think working with everybody was so good. And the best part about Ishqiya as a franchise is that it's always brought together different kind of actors with different energies and different styles. And I think that's true for Dade as well, because all of us in the film bring a completely unique and a completely quirky, mad element to the film. ओके माधुरी जी, हाय. मेरा सवाल आपसे ये है कि 1.5 इश्किया के अलावा कई सारी स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपको ऑफर किया गया, लेकिन आपने मना कर दी. सिर्फ 1.5 इश्किया को साइन किया था उस वक्त. क्या वजह थी 1.5 इश्किया को साइन करने की? क्योंकि वो 1.5 थी. नहीं, आई थिंक क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर मेरा बहुत अच्छा लगा, जो बेगम पारा का कैरेक्टर है, और पूरी स्क्रिप्ट ही मुझे अच्छी लगी थी. जो सब इक्वेशंस हैं सब एक्टर्स के, सब कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ,
बहुत मज़ेदार हैं, चढ़ उतार उसमें बहुत सारे हैं, और उतार चढ़ाव उसमें गिव एंड टेक बहुत है, और जो एक कमराडरी है टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक वो सब मुझे बहुत भा गई, तो दैट्स व्हाई आई डिड। बस क्योंकि हमने ये फिल्म पूरी 1.5 शिफ्टों में की है। हर शिफ्ट 1.5 शिफ्ट थी, तो हमने सोचा आप बताइए। पहली वाली इश्किया जो थी वो एक लार्ज ड्रिंक था, ये पटियाला है, दैट्स व्हाई ये 1.5 इश्किया। माधुरी जी ठीक सामने आपके यहाँ, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नज़र आ रही हैं आप, उसके अलावा कुछ ही टाइम के बाद गुलाब गैंग में भी आप आ रही, हमने देखा गुलाब गैंग का पोस्टर आया है, बहुत ही फियरलेस, बहुत ही कोई देवी के रूप में लग रही हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब अब फिर से कमबैक किया आपने, तो अब डिफरेंट अवतार में नज़र आने वाली है माधुरी जी अपने दर्शकों के सामने। ये कमबैक एक बार होता है, फिर से नहीं होता है। आप फिर से बोल रहे कमबैक, तो कितने कमबैक करूंगी मैं। लेकिन हाँ, ये दो बहुत ही अलग किस्म के रोल्स हैं, बहुत एक दूसरे से बिल्कुल परे हैं। गुलाब गैंग अपनी तरफ है, लेकिन बेगम पारा का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है, और आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम डूइंग ये दो बहुत ही अलग रोल्स। और दोनों ही फिल्में साथ में आने वाली थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि डेट काफ़ी चेंज हो गई है, तो ये आपने करवाया है या मैं कुछ नहीं करवाती। ये तो ऐसे ही था और ऐसे ही है। नसीर भाई का रिहर्सल चल रहा है, 8 बजे का आज प्ले है, तो उसके रिहर्सल में बिजी है, तो वो उन्होंने बोला था कि भाई कुछ नजदीक में वेन्यू होगा तो मैं एक आधे घंटे के लिए आऊंगा, लेकिन यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा और 1 घंटा जाने का था, तो इसके लिए वो नहीं आ पाए। अब क्या नसीर भाई रेगुलरली थिएटर करते हैं and he is very committed to theatre, so I think that's the reason, because around the year he is traveling with his team। कथा कोलाज, इस्मत मंटो हाजिर हैं, आज भी कथा कोलाज है उनका प्ले, इसलिए। Hi, my question is to Madhuri. Hi, straight up. It's been a while since you've been on a film set, and of course now this time around for Ishqiya, which is coming after a time. Tell us what has changed according to you when it comes to filmmaking, the entire process. I think they're going to very remote locations now, and we travel like every day 2 hours one way. No, I think filmmaking has changed a lot because it's more disciplined. We have ready scripts. Everything is worked out before we start doing the film, and it is finite. Like once we begin the film, we know when we are going to end it, and everything is very well planned. So in that sense, I think it's very good for the actors. It's much easier on them because everything is ready, scripted, and all you have to do is be on the set and perform. So I guess. Yeah, the promotions, yes. It's become a big deal now. Promotions have become very hectic. And I had seen that when I did Aaja Nachle, and now I'm experiencing it again. But I think it's all for the good. And there's some very, very good cinema coming out now. 7 मकाम और क्या हमारा उसके बारे में फीलिंग्स है? अच्छा, मेरे हिसाब से हर इंसान के ज़िंदगी में उसके मकाम के मायने बदल जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप का शायद चौथा मकाम पहला हो जाता है, कई दफ़ा आपका जो आखिरी मकाम है वो शायद दूसरा हो जाता है, तो मकाम अक्सर बदल जाते हैं, तो ये होता है। Isn't that right? No. I'm very bright. Damn, thank you. Clap for me. I love you guys. Yeah, don't get personal. That's not very nice. But for that you'll have to watch. अभिषेक, मेरा I know what you're thinking. आपके सामने। जी, अरे मैं सिर्फ धोखा ही खा रहा हूँ इस फिल्म में, कसम से बता रहा हूँ। मैं बहुत ही, अभिषेक पता नहीं बदला ले रहा है मेरे से, मेरे जज्बातों से खेल रहा है, पहली बार भी इस बार भी। मैं फाइनली लगता है खालिद खान से शादी कर लूंगा। अभिषेक,
आपके सामने यहाँ राइट साइड में आप सभी से सवाल है मेरा, क्योंकि ये 7 मकाम जो इसमें कहे गए हैं, 7 मकाम जिसमें है दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। जिस तरीके से ये चारों 1.5 इश्कियां के लिए कौन सा जो जुनून है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर के लिए भी और खुद पर्सनल आप? 1.5 इश्किया के लिए एक और मकाम है जो फिल्म के अंदर है, जो मैं बोल नहीं सकूंगा यहाँ पे। बोल दीजिए। चुतियापा वो है 1.5 इश्किया में, वो मकाम है जी। अभिषेक आपका आप भी इस पे कमेंट। माधुरी जी आप भी। मैं इनके आंसर को बेटर नहीं कर सकता हूँ। ये जो आपको 7 मकाम दिखाए गए हैं फिल्म के प्रोमो में, ये छलावा है। असली मकाम आपको फिल्म में दिखाया जाएगा और उसका हिंट आपको अर्शद ने दे दिया है। अगर मेरा मन जो चाहता है, अगर मैं वो करने लगा ना तो मैं जेल में होऊंगा। तो मैं अपने मन की जरा भी नहीं सुनता। आपका मन क्या कह रहा है वो मुझे बताइए। जो आपका मन कहेगा हम वही करेंगे। बहुत मन किया मेरा, मैंने अभिषेक को बोला भी, इसने 2 चमाट लगाया, बोला घर जा। मैं चला गया चुपचाप से। ये भी है। क्यों नहीं हो सकता? आपको शक है? Of course. हाँ? I'm in love with 1.5 इश्किया right now. हाँ? मेरा सवाल है माधुरी, अरशद और उमा से। आरुषि मर्डर केस का वर्डिक आ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके माता पिता है, उनको सजा मिल चुकी है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने सालों से माने ये केस जो है। It's not the correct platform to really talk about something like this, you know. It's a very serious issue. I think we should stick to the film. बाद में जानी। कैसे नाम लिया? इफ्तिखार। Madhuri, here, on your left. आपको नहीं दी, हमको तो थी। जी ना एक्साइटेड हूँ ना नर्वस हूँ, मुझे सोना है, इतना काम है अभी 1-1.5 महीना मुझे कि मेरे दिमाग में सिर्फ वही है। और नहीं, एक्साइटेड नर्वस नहीं हूँ अभी मेरा फोकस पूरा फिल्म पे है। फिल्म अच्छी बन जाए और जब तक रिलीज होगी तब देखी जाएगी क्या होना है इसका। Madhuri, here, on you, straight. You have romanced so many actors from Anil Kapoor to Shah Rukh Khan. So how was it, were you nervous in the beginning? Because, romancing Naseeruddin Shah is a... No, I wasn't nervous or anything, but I've always found his eyes to be very intense. And whenever we did, any intense scenes, I used to be a little shy. And that's the first time I found myself in that, situation. But I think with him, you don't have to act. You just have to react. Because he's so good, he's so natural that you just get carried away and you're just doing a scene as if you're talking to each other, Okay. And one question to Abhishek. Abhishek, Arshad and Naseeruddin Shah, they have continued with the sequel. Why is it that you chose Madhuri and not, you didn't go ahead with Vidya? It was a simple reason that when we decided to make the sequel, there was nothing more that I could talk about Vidya's character from the first film. Krishna's story was over. What I wanted to say about her was done. So to bring her into this new film, she had absolutely nothing to offer to the story because her story was over. I could only take forward the story of the two men and tell a new adventure in their life and the way they meet new women, what happens to that. Therefore, it's a simple reason. Uma.
सर्टिफिकेट तो यूए रहेगा और ड्यूरेशन 2 आवर 20 मिनट। अच्छा, मेरा सवाल उमा, अरशद और माधुरी जी से है। सामने ये अभी ठीक है। उमा, अरशद और माधुरी जी, बीइंग अ मुंबईकर और बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, 26/11 को कल 5 साल पूरे हो रहे हैं। इफ यू कैन जस्ट पे अ सिंगल ट्रिब्यूट टू दोज फैमिलीज हु लॉस्ट देयर फैमिलीज इन 26/11 एंड ऑल ऑफ अस फॉर दैट डे इज ऑल ऑफ फॉर बहुत बुरा दिन था हमारे लिए। तो if you can just say few things to about that, please, request. Please guys. Hi, my question is for Madhuri, just in your front. Madhuri, hi, you're looking so beautiful and in your movie also. Madhuri, just I want to ask, like, एज यू सेड, नसरुद्दीन जी के साथ काम करने समय उनकी आईज लाइक बहुत ज़्यादा वैसी थी, तो आपको लाइक कैसे इस तरह की जो सीन्स थे जब व्हेन यू वर डूइंग द सीन्स विद हिम, तो हाउ वाज यू वर वेरी कंफर्टेबल विद दैट और लाइक सम प्रॉब्लम्स वर आल्सो, नसरुद्दीन जी ने आपकी हेल्प की, ऐसा कुछ था? प्रॉब्लम्स कुछ नहीं थी, मतलब यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द सीन्स और? Yes, yes, of course. I was playing my character, or it was completely comfortable. We all were very comfortable on the sets. In fact, I was told that Nasir ji usually is a little irritated. This time he was very, very happy on the set. So, it was a very, very nice, very amicable kind of atmosphere, and we all had a blast or fun rather doing. एंड माधुरी, इससे पहले आपका जो डांसिंग नंबर रहा है ये जवानी है दीवानी में, बहुत ही हिट रहा है, तो अभी इस डेढ़ इश्किया में भी आपके कुछ डांसिंग नंबर्स के बारे में कुछ बताएंगे जो आपने डांस किया होगा? जी हाँ, एक दोनों ही गाने रेखा जी ने गाए हैं इसमें और बहुत खूबसूरती से गाए हैं उन्होंने। एक जो डांस है वो महाराज जी ने कंपोज किया है, पंडित बिरजू महाराज जी ने, और जो दूसरा है वो किया है कंपोज रेमो ने, विच इज़ वेरी वेरी अनलाइक हिम, क्योंकि ये उनका जॉनर नहीं है, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने किया है कोरियोग्राफ, आप देखेंगे तो पता चलेगा। बट आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड आई रियली मतलब बहुत मज़ा आया दोनों गाने करते वक्त। एंड वन क्वेश्चन फॉर हुमा ऑल्सो प्लीज। हुमा, माधुरी ऑलरेडी डांसिंग स्टार है और उनका डांसिंग हमेशा से फेमस रहा है, आपने कुछ स्टेप्स उनका शेयर किए, कुछ सीखे, उन्होंने कुछ स्टेप्स वगैरह आपको कुछ बताया उस टाइम पे, मूवी के टाइम पे? मतलब हाँ, थोड़ा सा आई हैव डांस विद हर, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे लगा सबका दिमाग ख़राब हो गया, आप मुझे माधुरी दीक्षित साथ डांस करवा रहे हैं, but I thought everyone lost it, but no, she was very sweet and I think we had great fun shooting that song. I'm just there towards the end, but I had great fun.